worship. Acha, now we are going to start alkane beta today. Topic under discussion is hydrocarbons. Topic is hydrocarbons. Hydrocarbons. Okay. So we are going to discuss alkanes in hydrocarbons. Alkanes. अच्छा पहला concept है कि why alkanes are least reactive. Alkanes are less reactive and alkenes are more reactive. So why is it so? Why alkanes are less reactive? Less reactive. तो क्या बेटा रीजन हो सकती है? Why alkanes are less reactive? एक तो ये कि alkanes में सारे bonds single bonds होते हैं, ठीक है? And single bonds are sigma bonds, and sigma bonds are strong bonds, ठीक है? So alkanes have sigma bonds. Alkanes में sigma bonds, and sigma bonds are strong bonds. Are strong bonds. One of the reasons why alkanes are less reactive. The other reason is that alkanes are non-polar. Alkanes are non-polar compounds, right? And non-polar compounds are less reactive. Alkenes भी non-polar होते हैं, लेकिन alkenes में pi bond is present. So pi bond is weak bond. तो pi bond actually alkene में break हो जाता है because pi bond is weak bond. वहीं से reaction start होता है. ये non-polar वाली बात, yes, it's common. Alkane and alkene both are non-polar, लेकिन alkene में pi bond की वजह से reactivity होती है. ज़्यादा reactive हैं alkenes. Alkanes are non-polar and non-polar compounds are less reactive. Right? So this is the discussion. Sorry, let me share this. Okay. Then beta, the next concept is reactions of alkanes. Wassalam. Next thing is chalo khair hai. Reactions of alkanes. Reactions of alkanes. Beta, we have three types of reactions, so we need to master these three reactions. First is combustion reaction, then is cracking reaction, and then is free radical substitution. Okay. So combustion, cracking, and free radical substitution, we need to understand. Now combustion we have two types then. One of the reaction is complete combustion. The other reaction is incomplete combustion. One is complete combustion, the other is incomplete combustion. But you are familiar with complete and incomplete combustion from your O-level studies. I hope that you have studied O-level में complete combustion जब होती है वो excess of oxygen में होती है और incomplete combustion जब limited supply हो oxygen की. तो लेकिन यहाँ आपको ये समझना है कि products क्या होंगे अगर if it is complete combustion. शाबाश. Complete combustion में जो products होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
ठीक है। हाँ, और इनकम्प्लीट कंबशन में प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, एंड यू नीड टू नो दैट कॉमन कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक। कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक इन नेचर। लेकिन बेटा प्रोडक्ट्स में ये भी हो सकते हैं, कार्बन सॉलिड एंड वाटर, ये प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोडक्ट कैन बी द प्रोडक्ट, या कार्बन एंड वाटर इज द प्रोडक्ट। अब ये दोनों आप डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। मैं अभी आपको आइडिया देता हूँ क्वेश्चन का। ये जो कार्बन सॉलिड है ना, इसको इसको सूट भी कहते हैं, या कार्बन ब्लैक भी कहते हैं। दिस इज कार्बन ब्लैक। बेटा आप लोग अब देखें ना, जो फ्राई पैन होता है वो जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो तो शाइन कर रहा होता है, लेकिन जब उसमें कुकिंग वगैरह होती है तो ब्लैक हो जाता है। और आप कोई नाइफ लेके ना फ्राई पैन की सर्विस को स्क्रैच करें तो ब्लैक मटेरियल उसकी सर्विस में जमा हो जाता है। दैट इज कार्बन ब्लैक। उसकी वजह यह है कि जो ऑयल है वो हाइड्रोकार्बन है, तो ऑयल की इनकम्प्लीट कंबशन भी होती है, तो उससे ये कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको आप मैनेज कैसे करोगे? तो जब नाउ फोकस दिस क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कहा जाए राइट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन, राइट इक्वेशन फॉर कंप्लीट combustion of ethane, इथेन की कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन लिखें। तो यू नो व्हाट इज इथेन बेटा? C2H6, और कंबशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना। तो बेटा इससे क्या बनेगा? हाँ, क्योंकि इट इज कंप्लीट कंबशन ना, तो CO2 प्लस H2O। और आपने ऑक्सीजन सबसे एंड में बैलेंस करना, पहले बैलेंस करें कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन यू हैव ऑन द राइट? 4, 5, 6, 7. So you make 7/2 over here. This is equation for the complete combustion. ठीक है? हाँ, इनकम्प्लीट का क्वेश्चन देखें। इक्वेशन फॉर इनकम्प्लीट combustion, equation for incomplete combustion in which a toxic gas is formed. Gas is formed. और ये इनकम्प्लीट कंबशन, लेट से कि ये आपको कहें कि प्रोपीन की एल्केन, एल्कीन और एल्कोहल्स, ये तीन ऐसे ग्रुप हैं जिनकी कंबशन इस सिलेबस में डिस्कशन होगी। एल्केन की कंबशन पॉसिबल है, एल्कीन की कंबशन पॉसिबल है, एंड एल्कोहल्स की कंबशन पॉसिबल है। बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप की कंबशन आपको नहीं बोलेंगे। ये तीन कंपाउंड्स हैं जो कि कंबस्टेबल हैं। ये तीन कंपाउंड्स हैं जो कि कंबस्टेबल है, राइट। तो अब अगर आपको बोले कि इनकम्प्लीट कंबस्शन, अब बेटा इसमें आप कौन से प्रोडक्ट्स लिखेंगे? ये C3H6 है, प्रोपीन। कंबस्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कार्बन मोनो नहीं, अब इनकम्प्लीट कंबस्शन है। और ये कह रहे हैं टॉक्सिक गैस इज फॉर्म। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन जिसमें टॉक्सिक गैस बने, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड है। और प्लस H2O3 कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस। ना ऑक्सीजन 6 है तो प्लस 3 है, राइट। In this way you can tell products and you can make equation for combustion. और बेटा अगर ये कहें कि इक्वेशन फॉर इनकम्प्लीट कंबस्शन,
combustion of propene, जिसमें in which a solid product is formed, in which a solid product formed. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोई इशू नहीं मैम। तो ना बेटा ये क्या कह रहे हैं? यस, इनकम्प्लीट combustion of propene in which solid product is formed. क्या लिखूं बेटा मैं? C3H6 plus O2 और सॉलिड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन है, कार्बन ब्लैक और वाटर इज फॉर्म्ड H2O. नाउ यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन. 3 कार्बन कर दें और 3 वाटर के साथ कर दें तो ऑक्सीजन को 3/2 कर दें. ठीक है, ये हैं इक्वेशंस बेटा. ये बेटा हम एल्केन के रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं और उसमें पहला रिएक्शन कंबस्शन था. कंबस्शन में कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबस्शन. इनकम्प्लीट कंबस्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर भी बन सकता है, कार्बन एंड वाटर भी बन सकता है, और फिर ये इक्वेशंस. ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं है तो मैं क्रैकिंग को स्टार्ट करूं. ये तो सिंपल था, यानी यू हैव स्टडीड द सेम कंटेंट इन ओ लेवल्स एज वेल. वो एल्कीन के रिएक्शंस हैं. हाइड्रेशन, एडिशन, दीज आर एल्कीन्स रिएक्शंस, नॉट एल्केन्स. एल्केन के रिएक्शन में एक कंबस्शन है, एक क्रैकिंग है और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज क्रैकिंग रिएक्शन. बेटा यू नो व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग तो आपने देखो इन प्रिंसिपल ये पढ़ा था कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जब ब्रेक हो जाएं शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन, दैट इज क्रैकिंग. ठीक है, क्रैकिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई क्रैकिंग इज डन? हाँ, टू मीट द डिमांड ऑफ पेट्रोल. ठीक है, पहला टू मीट डिमांड ऑफ पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस करते हैं क्रूड ऑयल की, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोल प्रोड्यूस होता है वो कम होता है. तो बाकी पेट्रोल क्रैक करके लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करते हैं तो पेट्रोल की चेन्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, दूसरा बेटा ये कि क्रैकिंग से हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. तो फिर इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन गैस के यूजेस हैं. ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज. और जैसे हैबर प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजन गैस यूज होती है फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज. तीसरा बेटा शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर बेटर फ्यूल्स. क्रैकिंग में शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं और शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर गुड फ्यूल्स. लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट गुड फ्यूल्स. ठीक है, तो शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर बेटर फ्यूल्स. शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर गुड फ्यूल्स. गुड फ्यूल्स. फिर बेटा कंडीशंस फॉर क्रैकिंग. What are the conditions for cracking? amount of carbon dioxide release होती है, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी होती है. Amount of carbon dioxide से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई. एक्चुअली शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स कंबस्टेबल हैं, इजीली बर्न हो जाते हैं. लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बर्न होते हैं लेकिन उनका ब्रेक डाउन कंबस्शन में डिफिकल्ट होता है. दैट इज व्हाई अब आप देखें ना कि शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में जो फ्यूल गैसेस हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन,
वो रेडिली बर्न हो जाते हैं, उनका रेजिड्यू लेस होता है। फिर लिक्विड फ्यूल जो है उनमें चेन्स थोड़ी सी लॉन्ग होती है, उनकी कंबस्टिबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। फिर चेन जितनी ज्यादा लॉन्ग होती जाए उतना कंबस्टिबिलिटी डिफिकल्ट हो जाती है। कैटलिस्ट बेटा क्या पढ़ा था आपने ओ लेवल्स में? नहीं, क्रैकिंग के लिए क्या कैटलिस्ट पढ़ा था? Al2O3 या SiO2, ठीक है। कैटलिस्ट यूज करें और क्रैकिंग करें तो ऐसी क्रैकिंग को कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट यूज करके अगर क्रैक कर दें। और एक बेटा टेम्परेचर से भी हम चेन, लॉन्ग चेन को ब्रेक कर सकते हैं। 500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा हो तो इसको थर्मल क्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर से अगर आप क्रैक कर रहे हो दैट इज थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग। और अगर आप कैटलिस्ट से की हेल्प से लॉन्ग चेन को ब्रेक कर रहे हो तो ये कैटालिटिक क्रैकिंग होगी। दिस इज कैटालिटिक क्रैकिंग, ठीक है। सिग्निफिकेंस देख ली और फिर आपने कंडीशंस देख ली। अब बेटा क्रैकिंग की इक्वेशंस, आई होप यू आर फेमिलियर विद दीज इक्वेशंस। C9H20 अगर ये एल्केन है एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज C5NH12, सो व्हाट विल बी द अदर प्रोडक्ट अगर इसका दो मोल्स किसी दूसरे प्रोडक्ट के हों? हाँ, आप बेटा बता सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे कार्बन और हाइड्रोजन को सेम होना चाहिए। C2 हो जाएगा और H4 हो जाएगा। तो 4 कार्बन एंड 5 9 कार्बन 20 हाइड्रोजन है। यस, समझ आई? इफ इट इज लाइक दिस C10 एंड H22 स्टेट। स्टेट बेटा ये याद रखें कि जो 4 कार्बन तक की चेन होती है ना, 4 कार्बन तक के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो गैसेस होते हैं। 4 कार्बन तक के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो गैसेस होते हैं, ठीक है। कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक की जो चेन होती है वो लिक्विड्स होते हैं। सब अल्कोहल तो सारे लिक्विड्स होते हैं बेटा। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक सब लिक्विड्स होते हैं। ये अल्केन अल्कीन की बात कर रहा हूँ। C5 से C17 तक लिक्विड्स होते हैं और C18 एंड अबव वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। C17 एंड अबव जो होते हैं वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। जैसे कैंडल वैक्स है या कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं या वैसलीन है, ये जेल है, ये वैक्सी सॉलिड्स हैं कार्बन 18 एंड अबव से। चलो मेन उस पर आ जाए। अगर ये C4NH8 है +2 इंटू समथिंग +H2, आप बता सकते हैं इस बॉक्स में क्या आएगा? इस बॉक्स में क्या आएगा? C3, शाबाश। H6 हाइड्रोजन देखें बैलेंस्ड है। 6 2s are 12, 12 and 8, 20, 20 into 22, everything is balanced, ठीक है। तो यू मे बी आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फिर एक क्वेश्चन ये है बेटा, वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, कि राइट इक्वेशन फॉर क्रैकिंग ऑफ मीथेन। क्रैकिंग ऑफ मीथेन की इक्वेशन लिखें। ये कैसे होगी ये इक्वेशन? नहीं, CH4 की अगर हम करें क्रैकिंग तो क्या बनेगा बेटा? CH2 तो कोई कंपाउंड नहीं है, क्या होगी मीथेन की क्रैकिंग की इक्वेशन? देखो यहां एग्जामिनर क्रैकिंग को डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन की मीनिंग में ले रहा है। यहां क्रैकिंग का मतलब ब्रेक डाउन है। तो अब देखें एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन क्या होगा, उसके एलिमेंट्स में कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा।
कि कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा अपने एलिमेंट्स में। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये कंपाउंड जब क्रैक हो जाएगा तो अपने एलिमेंट्स में क्रैक होगा। मीथेन क्रैक करोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन बनेगा, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, राइट? ओके। डन। नेक्स्ट रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। तो यहां से पहले समझें कि व्हाट इज फ्री रेडिकल। पहले ये तो पता हो कि फ्री रेडिकल क्या है। फ्री रेडिकल, ठीक है। तो नाउ फ्री रेडिकल इज वन मार्क डेफिनेशन के अ पार्टिकल with unpaired electron, with unpaired electron is free radical। एक पार्टिकल जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री रेडिकल होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखें। जैसे हैलोजन है, फ्लोरीन है। यू नो कि फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p5। अच्छा, अब 2p5 को बेटा देखें तो p5 के क्या मतलब है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि नहीं? तो फ्लोरीन इज फ्री रेडिकल, ठीक है। और जो चीज फ्री रेडिकल होती है उस पर यूं एक डॉट प्लेस करते हैं। फ्लोरीन क्यों है फ्री रेडिकल? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो किसी पार्टिकल में वो फ्री रेडिकल होगा। तो एफ को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो इस तरह जितने भी एटॉमिक हैलोजेंस हैं सारे फ्री रेडिकल्स हैं। लेकिन अगर मैं F2 की बात करूं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की, तो देखें फ्लोरीन मॉलिक्यूल को 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्डिंग में आपने पढ़ा कि दूसरा फ्लोरीन विल बी लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। अब यहाँ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है F2 में। F2 जो है वो नॉट अ फ्री रेडिकल। सराउंडिंग क्या मतलब? सिर्फ एक पेयर बॉन्ड। हाँ, ये जो बॉन्डिंग में अब ये पेयर हो गए, अनपेयर्ड नहीं कहा, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन को देखें वो पेयर्स की फॉर्म में, अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस वजह से ये फ्री रेडिकल नहीं है, नॉट अ फ्री रेडिकल, राइट? ठीक है। ये मुझे बताओ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है या नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है या नहीं? देखो ऐसे देखो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 2p4 तो p4 किस तरह होगा? 1 2 3 4। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दोनों केसेस में पार्टिकल विल बी फ्री रेडिकल। दो भी तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब भी फ्री रेडिकल होगा। तो ऑक्सीजन इज फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल के ऊपर ये डॉट प्लेस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इज फ्री रेडिकल। व्हाट अबाउट OH? OH फ्री रेडिकल है या नहीं? डॉट एंड क्रॉस के बगैर आप नहीं बता सकते। ऑक्सीजन के हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन से शेयर हो गया। अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो दिस OH इज फ्री रेडिकल। कंफ्यूजन? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लेफ्ट वाला देखें, ठीक है जी। अगर OH पॉजिटिव बोला जाए तो क्या OH पॉजिटिव फ्री रेडिकल है?
क्यों? सही कह रहे हो, ओ एच पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ओ के हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो लूज ये वाला जब करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ओ एच पॉजिटिव नॉट अ फ्री रेडिकल, ओ एच पॉजिटिव फ्री रेडिकल नहीं है। राइट? कंफ्यूजन? अच्छा, अब देखें कि अगर मैं बोलूं ओ एच नेगेटिव, तो क्या ये फ्री रेडिकल है? ओ एच नेगेटिव, ओ के हैं 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया हाइड्रोजन के साथ, ये तो ओ एच हो गया। अब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? एक गेन करेगा, जब ये गेन करेगा इधर तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो इट्स नॉट अ फ्री रेडिकल, नॉट अ फ्री रेडिकल। ठीक है, आपके ध्यान में क्या आ रहा है अबाउट CH3? CH3 फ्री रेडिकल है या नहीं? कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 3 हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, तो दिस इसके ऊपर पे डॉट लगा देंगे, CH3 इज फ्री रेडिकल। ठीक है, लेकिन CH3 पॉजिटिव बेटा, CH3 पॉजिटिव नॉट अ फ्री रेडिकल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। So, ऊपर जो आपने ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल लिखा है, हाँ एक तो जो भी चीज फ्री रेडिकल है उसके जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ, डॉट एक लगाएं, बस डॉट एक लगाएं। ठीक है, फ्री रेडिकल पे एक डॉट लगाएं, चाहे उसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब बेटा समरी ये है कि आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओगे तो आपको फिर पता चलेगा कि ये पार्टिकल फ्री रेडिकल है या नहीं है। अब मैं बता रहा हूं बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग को। ठीक है, फिजन ब्रेकिंग को कहते हैं। दो तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है, एक है होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। Bond fission is basically bond breaking. One of the type of bond breaking is homolytic bond fission. इसकी डेफिनेशन पे मैं अभी आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इट इज। देखो, लेट अस से कि दिस इज क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, इज दिस बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो सनलाइट में, यूवी लाइट में, तो ये इस तरह ब्रेक होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा। यानी बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला गया, तो ये एक भी फ्री रेडिकल बन गया, दूसरा भी फ्री रेडिकल बन गया, 2 फ्री रेडिकल बन गए। इसको कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या? होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। तो व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, व्हेन कोवेलेंट, जी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये जो डॉट मैंने लगाए ये इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना बॉन्ड में, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने ले लिया, दूसरा दूसरे ने ले लिया, बॉन्ड टूट गया। पहले शेयर हो रहे थे ना, तो दैट वाज कोवेलेंट बॉन्ड, अब टूट गया ना बॉन्ड, तो दोनों एटम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। दैट इज व्हाई दिस इज होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमो इसलिए कहते हैं कि दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। जो होमोलिटिक है, इसके बाद हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग भी आएगी। तो 2 तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग है, आपको समझनी। तो व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक such that, covalent bond break हो such that both atoms take 1 electron from bond pair,
बॉन्ड पेयर से दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लें एंड टू फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म and two free radicals are formed. तो ये होगी होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको अगर कहा जाए कि होमोलिटिकली कैसे ब्रेक करें, बेटा बताएं कैसे ब्रेक करें होमोलिटिकली। हाँ सामने देखें बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन में शिफ्ट करवा दें, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन में शिफ्ट करवा दें, तो एक बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल, एक बनेगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में फ्री रेडिकल मस्ट बनेंगे। ठीक है, ये मस्ट है कि दो फ्री रेडिकल बने होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में। और अगर उसमें बॉन्ड में एक कम एलिमेंट दोनों अपने इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ वो हेट्रो की तरफ फिर जाएगी, वो मैं फिर बताता हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑल अबाउट। तो देखो अगर के ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाए और दो फ्री रेडिकल बन जाए, तो दिस इज होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये आपके सामने जो है ये होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है। ठीक है, और फिर उसके बाद है हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। जी जी, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद नेक्स्ट थिंग इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। हेट्रोलिटिक bond breaking, and it is also can be asked for two mass definition. Heterolytic bond breaking, तो बेटा फॉर हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग थोड़ा सा देखें, फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूं कि सपोज इफ यू हैव HNCl, ठीक है, नाउ इसमें विच एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Cl is more electronegative, so we place partial negative on Cl. And H is less electronegative, we place partial positive on Cl, H. और अब जो bond pair है, the bond pair is transferred to the more electronegative atom. Bond break हो और bond इस तरह break हो कि bond pair transfer हो जाए more electronegative atom की तरफ, तो ये more electronegative atom becomes negatively charged. ये जो bond pair है ये transfer हो गया Cl में, और जो H है it becomes H positive. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ जाएंगे तो वो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इस केस में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने, इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। जी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? तो इसको फिर कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक such that both electrons of bond pair are transferred to more electronegative atom, are transferred to more electronegative atom, and a positive and negative ion is formed. A positive and negative ion is formed. So such bond breaking is heterolytic bond breaking. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसको हेट्रोलिटिकली ब्रेक करना हो तो बेटा आप कैसे ब्रेक करोगे? जी बेटा, पहले आपको डिसाइड करना है कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl is more electronegative, so place partial negative on Cl and place partial positive on carbon. और फिर इस बॉन्ड पेयर का क्या करना है?
हाँ, यू हैव टू ट्रांसफर, अगर हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करना हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये CH3 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में आयंस बनेंगे, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, लेकिन हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में आपके पास आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा। कि आपने ओ लेवल में पढ़ा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? नहीं पढ़ा था? नहीं, वो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, लेकिन फ्री रेडिकल substitution, this was the reaction you studied in O level, लेकिन वहां O level में आप इसे substitution reaction कहते थे। इस रिएक्शन की जो कंडीशन है वो क्या थी? कंडीशन बेटा क्या थी? यूवी लाइट, सनलाइट को क्या बोलेंगे? यूवी लाइट। ये डार्क नहीं, ऑक्सीजन नहीं, डार्क में ये रिएक्शन नहीं होगा, ये यूवी लाइट में होगा। और इसके जो रिएजेंट्स हैं बेटा, रिएजेंट्स में वन ऑफ द रिएजेंट इज एल्केन या एल्काइल, एल्केन या एल्काइल, एंड द अदर रिएजेंट इज हैलोजन। दूसरा रिएजेंट इज हैलोजन, कैन बी F2, कैन बी Cl2, कैन बी Br2, कैन बी I2, राइट। खैर F2 हटा दें। तो ये इसके रिएजेंट्स हैं। उसका एक रिएक्शन मैं कर देता हूं, बाकी हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। ये बेटा आपको यू नो दिस थिंग कि व्हाट इज द प्रोडक्ट? अगर यूवी लाइट में मीथेन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन, व्हाट इज द प्रोडक्ट? देखो इधर देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। लुक, वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन will pick one of the Cl to make HCl, right? One of the hydrogen will pick one of the Cl to make HCl. तो पीछे what is left behind? CH3 रह गया, क्योंकि one of the hydrogen combined with chlorine. अब इस CH3 में एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी है, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, लेकिन यहाँ 3 बॉन्ड है, तो देन क्लोरीन इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये समझ आई या नहीं आई? ये क्लोरोमीथेन है, कंपाउंड इज क्लोरोमीथेन। लेकिन आपको समझ आई ये बना कैसे? यू नो कि CH4 इज लाइक दिस इज CH4, ठीक है, एंड दिस इज Cl2। और यूवी लाइट में व्हाट हैपन कि ये मीथेन का हाइड्रोजन और क्लोरीन का Cl, इट विल मेक HCl। तो कार्बन के कितने बॉन्ड रह गए? 3 बॉन्ड। कार्बन इज बॉन्ड डेफिशिएंट नाउ, द अदर क्लोरीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।